हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन। रूटीन इम्यूनाइजेशन एक चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन और जो चिल्ड्रंस है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्लस कब कब किस एज में हम रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है या रूटीन वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आज हम देखते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज ऑलरेडी मेरे प्रीवियस क्लास पे आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज को टू क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, सिक्स किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज एंड द सेकंड वन इज अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। In that, the first six killer preventable vaccines disease include polio, the poliomyelitis, pertussis, tuberculosis, tetanus, diphtheria, and measles. In that include six killer disease, that is polio, pertussis, tuberculosis, tetanus, diphtheria, and measles. After that, the second classification, that is the other vaccines preventable disease, include Haemophilus influenza type B vaccine, typhoid, rubella, hepatitis B, pneumococcal conjugate vaccine, Japanese encephalitis, influenza, chickenpox, cholera, yellow fever, rotavirus. That is the other vaccines preventable disease. It is two classification. First, that is six killer vaccines preventable diseases, and the second one is the other vaccines preventable disease. Routine immunization, according to World Health Organization, started expanded program of immunization, that is EPI, for children under 5 years of age and pregnant women, to providing BCG, that is Bacillus calmette-guerin, DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, oral polio vaccines, measles, hepatitis B, PCV, that is pneumococcal conjugate vaccine, fractional inactivated polio vaccines, rotavirus vaccines for under 5 years children and TD for pregnant women. According to WHO, World Health Organization के थ्रू स्टार्ट किया गया EPI, that is the expanded program of immunization. This routine immunization, it is under the 5 year of children as well as the pregnant women. इस रूटीन इम्यूनाइजेशन में मेनली फोकस किया गया 0 to 5 year ऑफ एज ग्रुप एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें बहुत सारे जो वैक्सीन है जो प्रोवाइड किया जाता है 0 to 5 years ऑफ एज ग्रुप में। इसमें इंक्लूड है बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मेजल्स वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, पीसीवी, इन्फ्रेक्शन फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये सारे वैक्सीन प्रोवाइड किया गया एज वेल एज टीडी जो प्रोवाइड किया गया जो है चिल्ड्रंस को। और प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज अ टीडी, दैट इज अ टिटनस डिप्थेरिया। दैट ऑल द रूटीन इम्यूनाइजेशन। हम डिटेल देखते हैं इस रूटीन इम्यूनाइजेशन में और क्या क्या जो है इसके रूट है, अमाउंट है, किस साइट पे दिया जाता है, कब दिया जाता है, इस वैक्सीन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। वैक्सीन इंक्लूडिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन कौन से वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है आज हम देखते हैं। BCG, that is Bacillus calmette-guerin, OPV, that is oral polio vaccine, DPT, that is diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, HIV vaccines, that is Haemophilus influenza type B vaccine, rotavirus vaccines, PCV, that means pneumococcal conjugate vaccines, MR, measles, rubella, Japanese encephalitis, vitamin A oral supplementation, FIPV, that is fractional inactivated polio vaccine, TD, that is tetanus diphtheria. Pentavalent vaccine, that means it is a combination of five vaccines. It includes DPT, hepatitis B, and HIV vaccine. That is a combination of five vaccines is known as pentavalent vaccine. रूटीन इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये जो वैक्सीन है इनको इंक्लूड किया गया है। According to World Health Organization on 1974 launched Global Immunization Program. After 4 years, that is 1978, this Global Immunization Program is known as Expanded Program on Immunization, that is EPI.
ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम आफ्टर 4 ईयर के बाद दैट इज 1978 को ईपीआई बोला गया। मेन एम ऑफ दिस ईपीआई टू प्रिवेंट 6 किलर डिसीज। अब ये 6 किलर डिसीज क्या है? द 6 किलर डिसीज इंक्लूड पोलियोमाइलिटिस, पर्टूसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड मीजल्स। ईपीआई का मेन पर्पस, मेन एम या मेन गोल था कि 6 किलर डिसीज से प्रिवेंट करना। ईपीआई को रीनेम्ड किया गया थ्रू यूनिसेफ के। ईपीआई को रीनेम्ड किया गया थ्रू यूनिसेफ। द यूनिसेफ दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। रीनेम करके नेम बोला गया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ईपीआई को चेंज किया गया, नेम को जो है वो रीनेम्ड कर दिया गया थ्रू यूनिसेफ के एंड बोला गया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। In India, it is known as Universal Immunization Program on 1985 नवंबर। इंडिया पे लॉन्च किया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दैट इज ऑल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फर्स्ट डब्ल्यूएचओ 1974 में लॉन्च किया गया, जिसे बोला गया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आफ्टर 4 इयर्स के बाद इसके नेम को चेंज कर दिया गया और बोला गया ईपीआई दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। मेन एम ऑफ दिस ईपीआई टू प्रिवेंट 6 किलर डिसीज। ईपीआई को रीनेम किया गया यूनिसेफ के थ्रू और बोला गया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इन इंडिया पे लॉन्च किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन 1985। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट ऑफ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे जो वैक्सीन इंक्लूड किए गए हैं उसमें कौन कौन से रूट जो है वो यूज किया जाता है हर एक वैक्सीन के लिए। जो रूट है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड ओरल। इंट्राडर्मल ओनली टू वैक्सीन्स जो देते हैं। फर्स्ट वन इज अ बीसीजी वैक्सीन दैट इज अ बैसिलस कैलमेट-क्यूरी एंड द सेकंड वन इज दैट इज अ फ्रैक्शनल आईपीवी। ये जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। इंट्राडर्मल ओनली टू वैक्सीन को दिया जाता है। फर्स्ट है बीसीजी वैक्सीन को एंड द सेकंड वन इज अ फ्रैक्शनल आईपीवी। इंट्रामस्कुलर जो है प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रन को वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन। ये जो 5 वैक्सीन है 5 वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है लाइक डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिव वैक्सीन। Then PCV, that is pneumococcal conjugate vaccine, as well as TT, tetanus toxoid, and TD, tetanus diphtheria. That all vaccines given to intramuscular. Then next one subcutaneous. Subcutaneous में भी measles, rubella and Japanese encephalitis को subcutaneous जो है वो दिया जाता है. That is total 3 vaccines that is given to subcutaneous. The measles, rubella, it is a combination of 2 vaccines and the Japanese encephalitis, it is also given to the subcutaneous. The next one is a oral vaccine. Oral vaccines या oral रूट के लिए हम oral रूट पे जो vaccines दिया जाता है, first is a oral polio vaccines, second one is a rotavirus vaccines and third one is a vitamin A. ये 3 vaccines है जिसको oral रूट से दिया जाता है. Route of vaccination intradermal, intramuscular, subcutaneous and oral. That all route of वैक्सीनेशन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन जो चार्ट दिया गया है या इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है उसमें कौन कौन से एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है वो हम देखते हैं। इसमें पहले एट बर्थ देते हैं, फिर वीक्स पे है, मंथ पे है और ईयर है। अगर आपको याद करना है तो वीक्स में 3 वीक्स है, 6, 10 और 14 वीक्स है। मंथ में हम 9 मंथ और 16 to 24 मंथ्स याद कर सकते हैं। ईयर में दो कैटेगरी है, 5 to 6 ईयर्स, 10 to 16 ईयर्स और लास्ट है प्रेग्नेंट वीमेन में। तो ये ऑल एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एट बर्थ वीक्स में 6, 10 और 14 वीक्स, मंथ में 9 मंथ एंड 16 to 24 मंथ्स एंड द ईयर्स में 5 to 6 ईयर्स एंड जस्ट 10 to 16 ईयर्स। देन लास्ट दैट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन।
ये सारे एज ग्रुप जिसमें हम वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे ये एज ग्रुप को जो है वो इंक्लूड किया गया है। देखते हैं एट बर्थ कौन कौन से वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एक न्यूबॉर्न को। बिकॉज एट बर्थ दैट इज द न्यूबॉर्न बेबीज है, 1 मंथ ऑफ बेबी को कौन कौन से वैक्सीन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एट बर्थ देयर इज 3 वैक्सीन्स: ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं, एंड द मैक्सिमम एज ऑफ एट बर्थ डोज दैट इज विद इन 24 आवर्स। इसको हमको 1 डे ही इसको देना है, सेकेंड डे हमको प्रोवाइड नहीं करना, दैट इज द मैक्सिमम एज। हेपेटाइटिस बी के जो अमाउंट है दैट इज 0.5 ml। ये बर्थ डोज है, एंड इट द मैक्सिमम एज इज विद इन 15 days। After birth, it is provided within 15 days. And the BCG vaccines का maximum age है till 1 year of age, in that the one condition. Until 1 month of age, the dose is 0.05 ml, and after 1 month to 1 year, the dose is just double, that is 0.1 ml. That means the BCG vaccines, the maximum age is 1 year. 1 year तक हम BCG vaccines दे सकते हैं। 1 month तक इसका जो डोज है 0.05 ml है। आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर इसका जो डोज है वो 0.1 ml हो जाता है। तो एट बर्थ 3 वैक्सीन दिया जाता है: ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। 3 वैक्सीन इट इज गिवन: ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज a 2 drop, it is a 0 dose, it is given within 24 hours, and the hepatitis B, that is amount is 0.5 ml, and the route is a intradermal, and it is a given after birth within 15 days. And BCG vaccines at birth, that is given to the until 1 month of age, it is the amount is 0.05 ml, and after 1 month to 1 year of age, the dose is 0.1 ml, and the maximum age of BCG vaccines, that is till 1 year of age. नेक्स्ट हम देखते हैं वीक्स पे है 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. 6 weeks is also known as 1.5 month. 10 weeks is also known as 2.5 months. 14 weeks is also known as 3.5 months. 6 weeks पे टोटल 9 वैक्सीन है, 10 weeks पे टोटल 7 वैक्सीन है, 14 weeks पे टोटल 9 वैक्सीन है। 6 weeks पे टोटल 9 वैक्सीन है। ये 9 वैक्सीन के नेम है: फर्स्ट इज अ पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन: DPT, hepatitis B and HIV vaccine. Then oral polio vaccine and fractional inactivated polio vaccine. पोलियो वैक्सीन के 2 वैक्सीन है: oral polio vaccines and fractional inactivated polio vaccine. Then next है pneumococcal conjugate vaccine and the rotavirus vaccines. Total that is the 9 वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन के 2 वैक्सीन, न्यूमोकोकल की 1 वैक्सीन एंड रोटावायरस वैक्सीन टोटल जो है वो 1 वैक्सीन। तो टोटल दैट इज अ 6 weeks पे 9 वैक्सीन। 6 weeks पे जो हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को, सेम हम 14 weeks पे जो है वो चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इट इज अ 6 weeks इक्वल टू 14 weeks। टोटल 9 वैक्सीन 6 weeks पे दिया जाता है, एंड द 9 वैक्सीन जो है वो दिया जाता है 14 weeks या 3.5 month में। देन नेक्स्ट आता है 10 weeks पे। 10 weeks पे ओनली 7 वैक्सीन दिया जाते हैं। ये 7 वैक्सीन में फर्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन: DPT, हेपेटाइटिस बी एंड HIV वैक्सीन, एंड ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटावायरस वैक्सीन, दैट इज अ टोटल 7 वैक्सीन। इस 7 वैक्सीन है जो फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के 2 डोज है। फर्स्ट डोज हम देते हैं 9 जो फर्स्ट जो डोज दिया जाता है 6 weeks पे, एंड सेकेंड डोज जो दिया जाता है 14 weeks पे। सेम जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, इसके टोटल 3 डोज है। फर्स्ट डोज दिया जाता है 6 weeks पे, सेकेंड डोज दिया जाता है 14 weeks में, एंड थर्ड डोज या बूस्टर डोज जो थर्ड है दैट इज गिवन टू 9 months। रोटावायरस वैक्सीन के टोटल 3 डोज हैं। फर्स्ट वैक्सीन जो दिया जाता है वो है जो है 6 weeks, सेकेंड डोज जो है वो 10 weeks पे, एंड द थर्ड
dose जो है that is a 14 weeks. That is all weeks, that is a 6 weeks, 1.5 month. 10 weeks is also known as 2.5 months, and 14 weeks is also known as a 3.5 months. That all the weeks. नेक्स्ट हम देखते हैं मंथ्स में 2 मंथ्स है, 9 मंथ्स एंड 16 to 24 मंथ्स। 9 मंथ्स में 4 वैक्सीन है, 16 to 24 मंथ्स में भी 4 वैक्सीन है। जो 9 मंथ्स में उसमें मीजल्स और रुबेला का फर्स्ट डोज देते हैं, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज, विटामिन ए 9 मंथ पे स्टार्ट किया जाता है, और पीसीवी का जो थर्ड डोज बचा था दैट इज बूस्टर डोज। पहला जो डोज है हम 6 वीक्स पे दिए थे, सेकेंड डोज जो है हमने 14 वीक्स पे दिया, एंड थर्ड जो डोज है दैट इज अ थर्ड डोज इज बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज को दिया जाता है 9 मंथ में, दैट इज तो 9 मंथ में मीजल्स और रुबेला का फर्स्ट डोज, जेपनीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज, विटामिन ए का जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है 9 to 12 मंथ में, जो है स्टार्ट किया जाता है विटामिन ई, दैट इज अ ओरल सप्लीमेंटेशन है, और पीसीवी का जो बूस्टर डोज बचा था जो हम 9 मंथ पे देते हैं। सेम 16 to 24 मंथ्स में, क्योंकि जो मीजल्स और रुबेला के 2 डोज होते हैं, तो फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ में दे दिए, सेकेंड डोज देते हैं हम 16 to 24 मंथ में। सेम एज अ सेम लाइक अ मीजल्स रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस का पहला डोज हमने 9 मंथ में दिया, और सेकेंड डोज जो है हम 16 to 24 मंथ्स पे देते हैं। देन जो बूस्टर डोज है डीपीटी का बूस्टर डोज, 2 बूस्टर डोज है। फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ्स में। देन एक ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज होता है, जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज जो 16 to 24 मंथ्स पे दिया जाता है। तो 16 to 24 मंथ्स में भी 4 वैक्सीन है। पहला है मीजल्स और रूबेला का सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज, और ओपीवी का सिर्फ एक ही बूस्टर डोज है जो हम 16 to 24 मंथ्स पे देते हैं। देन नेक्स्ट आता है ईयर में, 5 to 6 ईयर में डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है, और 10 to 16 ईयर्स में टीडी दिया जाता है, दैट इज टेटनस डिप्थीरिया। ये ओवरऑल है 9 मंथ, 16 to 24 मंथ, 5 to 6 ईयर्स एंड 10 to 16 ईयर्स। हम डिटेल अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे हम पूरा डिटेल्स इसका हम पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हर एक वैक्सीन का अमाउंट कितना है। ठीक है, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन पे हम बीसीजी वैक्सीन पढ़े, बीसीजी वैक्सीन का जो अमाउंट है 0.05 ml है until 1 month of age after birth, and 0.1 ml after 1 month to 1 year of age. That is the BCG का अमाउंट जो है, अगर हम विद इन 1 मंथ पे हम देते हैं बीसीजी वैक्सीन, द अमाउंट इज 0.05 ml, बट आफ्टर 1 मंथ to 1 year के बीच पे अगर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज द अमाउंट इज 0.1 ml। देन फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का जो अमाउंट है दैट इज 0.1 ml। देन रिमेनिंग जो भी वैक्सीन है लाइक पेंटावेलेंट वैक्सीन, दैट इज अ डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, hepatitis B, and Haemophilus influenza type B, pneumococcal conjugate vaccines, tetanus toxoid, diphtheria pertussis tetanus का booster dose, Japanese encephalitis and measles and rubella, जो भी रिमेनिंग जितने सारे ये वैक्सीन हैं सबका अमाउंट 0.5 ml है। ओनली बीसीजी एंड फ्रैक्शनल आईपीवी का जो अमाउंट है दैट इज 0.1 ml, एंड रिमेनिंग अदर वैक्सीन द अमाउंट इज 0.1 ml। तो हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में कौन कौन से जो कैटेगरी रखे हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है उसको, उसका डोज, रूट, अमाउंट, प्रिवेंटेबल डिसीज, ये सारी चीज हम इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे देखते हैं। बर्थ ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि एट बर्थ 3 वैक्सीन देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन के 0 डोज, हेपेटाइटिस बी के बर्थ डोज, एंड बीसीजी वैक्सीन के सिंगल डोज। ओरल पोलियो वैक्सीन के 0 डोज है जिसका अमाउंट है 2 ड्रॉप्स, मैक्सिमम इज विद इन 24 आवर्स, रूट है ओरल, साइट इज ओरल, एंड प्रिवेंटेबल डिसीज दैट इज पोलियो। Then next one is a hepatitis B, that is a birth dose. Amount is 0.5 ml. Maximum is within first 15 days. Route is
intramuscular, and the site is anterior lateral side of mid thigh left. And preventable disease, that is hepatitis B. Then BCG, that is Bacillus calmette-guerin. The amount is 0.05 ml until 1 month of age. Birth to 1 month of age, amount is 0.05 ml, and amount 0.1 ml after 1 month to 1 year of age. अमाउंट है 1 मंथ तक 0.05 ml है, आफ्टर 1 मंथ to 1 year that is 0.1 ml. Maximum is that is still 1 year of age. Root is intradermal and the site is upper arm left. यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हर एक चिल्ड्रन का ये लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है. द प्रिवेंटेबल डिसीज में ट्यूबरकुलोसिस, तो एट बर्थ ओरल पोलियो वैक्सीन के 0 डोज, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज और बीसीजी वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एट बर्थ. नेक्स्ट हम वीक्स पे देखते हैं 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स. ऑलरेडी ये चीज का डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि 6 वीक्स पे टोटल 9 वैक्सीन जो है वो दिया जाता है एंड 14 वीक्स पे 9 वैक्सीन देते हैं एंड 10 वीक्स पे जो है वो 7 वैक्सीन जो है वो दिया जाता है. तो 6 वीक्स पे जो भी हम वैक्सीन लिखेंगे हमको एज इट इज सेम कॉपी करना है 14 वीक्स पे. तो जो 6 वीक्स में टोटल 9 वैक्सीन है, जिस 6 वीक्स को हम बोलते हैं 1.5 मंथ. तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज, ओपीवी का फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल आईवी का फर्स्ट डोज एंड पीसीवी का फर्स्ट डोज एंड रोटावायरस वैक्सीन का फर्स्ट डोज. अमाउंट है पेंटावेलेंट का 0.5 ml, ओरल पोलियो वैक्सीन है 2 ड्रॉप्स, फ्रैक्शनल आईपीवी है 0.1 ml, पीसीवी दैट इज निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का है 0.5 ml एंड रोटावायरस वैक्सीन को जो प्रोवाइड किया जाता है 5 ड्रॉप्स. मैक्सिमम इज पेंटावेलेंट वैक्सीन, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन एंड रोटावायरस वैक्सीन. ये जो टोटल जो है वो 8 वैक्सीन है जिसका मैक्सिमम एज है 1 ईयर. ओनली ओरल पोलियो वैक्सीन जो है मैक्सिमम एज है 5 ईयर. सबको पता है कि हम पोलियो वैक्सीन का मैक्सिमम एज होता है 5 ईयर्स. द रूट जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन जो 5 वैक्सीन है, डीपीटी, हिव वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी का जो है इंट्रामस्कुलर है. ओरल पोलियो वैक्सीन का रूट ओरल है. फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का रूट है इंट्राडर्मल. जो निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है इसका रूट है इंट्रामस्कुलर. रोटावायरस वैक्सीन है जिसका रूट है ओरल. अब हम साइट देखते हैं. साइट में पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसका जो है साइट है एंटीरियर लैटरल साइट मिड थाई लेफ्ट. ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल. देन राइट अपर आर्म फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. देन निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सेम है, हम जो पेंटावेलेंट वैक्सीन को मिड थाई लेफ्ट में देते हैं और निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन है उसको मिड थाई राइट पे दिया जाता है. देन रोटावायरस वैक्सीन बिकॉज इट इज ओरल तो ओरल रूट पे देते हैं. प्रिवेंटेबल डिसीज पे हम देखते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन का प्रिवेंटेबल डिसीज है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हिप डिसीज. ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो को प्रिवेंट करता है. फ्रैक्शनल या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो को प्रिवेंट करते हैं प्रिवेंटेबल डिसीज में. निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन जो है प्रिवेंटेबल डिसीज है निमोनिया एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. And rotavirus vaccine it is a preventable for the diarrhea disease. That is the 6 weeks. सेम है, ये जो 6 weeks जो है वो सेम वैक्सीन दिया जाता है जो 14 वीक्स पे, बस जो डोज है वो चेंज हो जाता है. देन हम देखते हैं 10 वीक्स में पेंटावेलेंट वैक्सीन के सेकेंड डोज देते हैं. सेकेंड डोज जो है वो देन ओरल पोलियो वैक्सीन के सेकेंड डोज एंड रोटावायरस वैक्सीन के सेकेंड डोज. इसमें 2 वैक्सीन जो एक्सक्लूड किया गया है, फ्रैक्शनल आईपीवी. देन सेकेंड वन इज जो है वो पीसीवी जो है इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया. सेम है, इसमें हम पेंटावेलेंट वैक्सीन से 0.5 ml देते हैं, ओपीवी जो है 2 ड्रॉप्स एंड रोटावायरस वैक्सीन जो है वो 5 ड्रॉप्स जो है वो दिया जाता है. ये जो है 10 वीक्स. देन 14 वीक्स में पेंटावेलेंट वैक्सीन के थर्ड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन के थर्ड डोज, फ्रैक्शनल आईपीवी के सेकेंड डोज, क्योंकि फर्स्ट डोज हम 6 वीक्स में दें और सेकेंड डोज जो है हम 14 वीक्स पे देते हैं. देन जो निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन है उसका सेकेंड डोज देते हैं हम. जो रोटावायरस वैक्सीन है उसके हम थर्ड डोज देते हैं. तो अगर हम याद करना है
तो 6 वीक्स और 14 वीक्स में सेम वैक्सीन है, जो ये सारी चीज हम इजिली जो है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मंथ्स पे। मंथ्स में 2 मंथ्स थे, 9 मंथ्स एंड 16 to 24 मंथ्स। 9 मंथ्स में हम मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज, विटामिन ए दैट इज स्टार्ट करते हैं हम 9 मंथ से। देन न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन का बूस्टर डोज है वो 9 मंथ पे दिया जाता है। पीसीवी के 3 डोज थे, फर्स्ट डोज हम 6 वीक्स पे दिए, सेकेंड डोज 14 वीक्स पे, और जो बूस्टर डोज है वो 9 मंथ पे दिया जाता है। तो मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज, पीसीवी का बूस्टर डोज जो है वो 9 मंथ पे, एंड विटामिन ए जो है वो उसका जो है फर्स्ट डोज जब हम स्टार्ट करते हैं 9 मंथ से। अमाउंट सेम अमाउंट है, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, एंड विटामिन ए क्योंकि ये ओरल है तो इसको हम 1 ml जो है वो देते हैं। 1 ml के बाद एवरी 6 मंथ के बाद जो विटामिन ए का जो डोज है वो 2 ml हो जाता है। देन मीजल्स एंड रूबेला का मैक्सिमम एज है 5 ईयर ऑफ एज, जापानीज इंसेफेलाइटिस का मैक्सिमम एज है 15 ईयर ऑफ एज, पीसीवी का बूस्टर डोज है मैक्सिमम एज है 1 ईयर ऑफ एज, एंड विटामिन ए जो है उसका मैक्सिमम एज है 5 ईयर ऑफ एज। मीजल्स एंड रूबेला एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस जो का रूट है सबक्यूटेनियस, एंड मीजल्स एंड रूबेला को दिया जाता है अपर आर्म लेफ्ट, एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस को दिया जाता है अपर आर्म राइट। प्रिवेंटेबल डेज में मीजल्स रूबेला का है, मीजल्स और रूबेला से प्रिवेंट करता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस डिसीज से प्रिवेंट करता है। ऑलरेडी हम ये न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन पढ़ चुके हैं। इट इज गिवन, द साइट इज एंटीरियर लैटरल साइड मिड थाई राइट, and the preventable disease is pneumonia and upper respiratory infection. Vitamin A, the amount is 1 ml and the maximum age is 5 year of age, and the route is oral and the site that is the oral, and the preventable disease that is the blindness. That all about the 9 months. The next one is 16 to 24 months. In that measles, rubella and Japanese encephalitis के हम सेकेंड डोज देते हैं और अमाउंट पे हम सेम है 0.5 ml, 0.5 ml as it is. The maximum age is 5 year of age. The maximum age of Japanese encephalitis that is 15 years of age. Route is subcutaneous and same as it is the 9 month पे जो जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है सेम एज इट इज जो है वो 16 to 24 मंथ के लिए मीजल्स रूबेला एंड जेपेनिड्स एंड इंसेफेलाइटिस के लिए इंक्लूड किया गया है। देन नेक्स्ट हम बोलते हैं बीपी, जो डीपीटी है, डीपीटी के 2 बूस्टर डोज है। फर्स्ट बूस्टर डोज हम देखते हैं 16 to 24 मंथ में, एंड सेकेंड बूस्टर डोज जो दिया जाता है 5 to 6 ईयर्स में। जो बूस्टर डोज है उसका जो मैक्सिमम एज है जो है 7 ईयर ऑफ एज है। देन 5 to 6 ईयर्स पे हम देखते हैं, 5 to 6 ईयर्स के पहले हम देखते हैं 16 to 24 मंथ्स में ओरल पोलियो वैक्सीन के बूस्टर डोज दिए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन के बूस्टर डोज में जो देखा गया है, पहला जो चीज है वो 2 ड्रॉप्स देते हैं अमाउंट पे, मैक्सिमम एज है 5 ईयर ऑफ एज। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसका रूट है ओरल, साइट है ओरल, एंड द प्रिवेंट करता है ये पोलियो से, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। देन 5 to 6 ईयर्स पे हम देखते हैं बूस्टर डोज, जो डीपीटी का जो बूस्टर डोज बचा हुआ है उस बूस्टर डोज को हम देते हैं डीपीटी बूस्टर डोज सेकेंड। अमाउंट है 0.5 ml, एंड जो मैक्सिमम एज है 7 ईयर ऑफ एज, एंड रूट इज इंट्रामस्कुलर, एंड जो साइट है जो डीपीटी का वो हम देते हैं जो है वो अपर आर्म पे जो दिया जाता है दैट इज डेल्टॉइड मसल्स पे। देन प्रिवेंटेबल डिसीज में ये डीपीटी को प्रिवेंट करता है, एंड जो डीपीटी को ये प्रिवेंट करता है, दैट इज अ 5 to 6 ईयर्स। देन 10 to 16 ईयर्स पे हम देखते हैं दैट इज अ टीडी, दैट इज अ tetanus diphtheria, and the amount is 0.5 ml, and the maximum age is 16 year of age, and the route is intramuscular and it is given to the upper arm deltoid muscles, and it is a prevent for the tetanus and diphtheria.
That all 9 months, 16 to 24 months, and 5 to 6 years, and 10 to 16 years. तो हम रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट क्यूरे and it is given at birth, and the site of BCG vaccines, that is the left upper arm. डोज हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसका जो जो साइट है या जिसका हम रूट बोल सकते हैं दैट इज इंट्राडर्मल। नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन के टोटल 5 डोज हैं, जिसमें से एट बर्थ 0 डोज है, देन 6 वीक्स है, 10 वीक्स है एंड 14 वीक्स है, एंड 16 टू 24 मंथ्स पे हमने देखा दैट इज द बूस्टर डोज। दैट इज द टोटल 5 जो है इसके डोज है। Then next, hepatitis B vaccine. It is a 4 doses and the one is a first one at birth हम देते हैं। जो at birth जो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमको विद इन 15 डेज के अंदर पे इसको प्रोवाइड करना है। और जो 6, 10 और 14 वीक्स है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन के कॉम्बिनेशन पे ये अवेलेबल है 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे। ऑलरेडी हमने पढ़ा है व्हाट इज द पेंटावलेंट वैक्सीन। पेंटावलेंट वैक्सीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 vaccines and it is given to 3 weeks, that is 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. In that include the 5 vaccines: diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and HIV vaccines, that is Haemophilus influenza type B vaccine, that is include in the 5 vaccines and it is given to 3 weeks, 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. Then next DPT vaccines. DPT vaccines it is present total 5 dose but 3 doses is a combination of pentavalent vaccines and the 2 doses are booster dose. जो 3 डोज है वो हमारे पेंटावेलेंट वैक्सीन के कॉम्बिनेशन पे इंक्लूड है, दैट इज 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। एंड द 2 जो डोज है दैट इज अ बूस्टर डोज दैट इज गिवन टू 16 टू 24 मंथ्स एंड 5 टू 6 ईयर्स में हम 2 जो है बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं डीपीटी के। टोटल दैट इज 5 बट 3 पेंटावेलेंट वैक्सीन के कॉम्बिनेशन पे प्रेजेंट है एंड द 2 डोज जो है वो हम बूस्टर डोज में हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Then next one is a fractional inactivated polio vaccines. Inactivated polio vaccines की 2 डोज है 6 weeks and 14 weeks पे। The maximum age है 1 year of age. Amount है 0.1 ml and the route is a interdermal and the storage या cold storage हम बोल सकते हैं cold chain, that is a 2 degree Celsius to plus 8 degree Celsius, that is the inactivated polio vaccine. Then next one, pneumococcal conjugate vaccine. Pneumococcal conjugate vaccines, it is given 6 weeks, 14 weeks and 9 months. The maximum age of this pneumococcal conjugate vaccine, that is 1 year of age. And the amount जो दिया जाता है 0.5 ml and the route जो है वो इसको दिया जाता है intramuscular. रोटावायरस वैक्सीन के 3 डोज है। फर्स्ट डोज 6 वीक्स, सेकेंड डोज 10 वीक्स एंड द थर्ड डोज दैट इज 14 वीक्स एंड द रूट इज ओरल रूट से दिया जाता है एंड 5 ड्रॉप्स। The next one is Japanese encephalitis. Japanese encephalitis के 2 डोज है। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे है and the second dose 16 months to 24 months पे है। And the maximum age of Japanese encephalitis, that is 15 year of age and it is a given subcutaneous and the amount is 0.5 ml. That is Japanese encephalitis. Then measles and rubella vaccine. Measles and rubella vaccines, it is also in 2 doses. The first is a 9 month to 12 months and the second dose is 16 months to 24 months. The maximum age of this measles rubella vaccine, that is a 5 year of age
The amount is 0.5 ml and the route is subcutaneous. That is a measles vaccine, measles and rubella vaccine. The next one is vitamin A. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स विटामिन ए के टोटल डोज 9 होते हैं। फर्स्ट डोज जो स्टार्ट किया जाता है 9 मंथ पे, अमाउंट इज 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड द सेकेंड डोज दैट इज अ स्टार्ट आफ्टर 1 ईयर के बाद हम सेकेंड डोज स्टार्ट करते हैं, दैट इज 16 to 18 मंथ्स पे। जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, दैट इज द 2 ml एंड द 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है प्रोवाइड किया जाता है। एवरी 6 मंथ के गैप में ये प्रोवाइड किया जाता है टिल 5 ईयर ऑफ एज ग्रुप तक। तो टोटल डोज विटामिन ए के हो जाते हैं 9 डोज। जो विटामिन ए है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जो रेड और ऑरेंज कलर के सिरप फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, और इसको ओरल बाय माउथ के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है 0 to 5 ईयर ऑफ या टिल 5 ईयर ऑफ एज ग्रुप के लिए। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, ये कंप्लीट दिया हुआ है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल पढ़े हैं वो ये पूरे चार्ट में जो है वो अवेलेबल है। ये कंटिन्यू है उस चार्ट का, आप इसको कंप्लीटली आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि टीटी, जो TD1 TD2 एंड जो बूस्टर डोज है वो कब कब प्रोवाइड किया जाता है।